बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी के साथ वापस यहाँ पर मिलकर बहुत समय के बाद। And you know, the work of the Lord in Abbotsford seems to be growing. परमेश्वर का काम एबरसड की कलीसिया में शहर में बढ़ रहा है। This morning, I wasn't expecting to preach until John came on Friday. I just wanted to visit how you guys were doing and just be part of the service. और मेरी कोई यहाँ पर सोच नहीं थी कि आज के दिन को प्रचार करने के लिए इस खास शुक्रवार के दिन, फ्राइडे के दिन जॉन ने मेरे साथ बात की और इनकरेज की। मेरी यही ख्वाहिश थी कि मैं आप सभी के साथ आज मिल सकूं और यहाँ पर इस सभा का एक हिस्सा बन सकूं। You know, sometimes it's just good to sit in the service and enjoy His presence. कई बार अच्छा होता है कि परमेश्वर की हजूरी में बैठें और खुदावंद की हजूरी को महसूस करें। So, how are you this morning? कैसे हैं आप सभी आज की सुबह? Some of you are just still, and some of you are going like this. It would be good. How are you this morning? That's good. So, know that God loves you ये जाने कि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है and that He wants the very best for you. और वो आप सबके लिए बहुत अच्छा चाहता है। And sometimes we forget that there is a task ahead of us. कई बार हम भूल जाते हैं कि हमारे आगे जो एक मंजिल है जिसकी ओर हम जा रहे हैं। Each one of you has been sent into the world by God for a purpose. आप सभी को इस दुनिया में परमेश्वर ने भेजा है उसके काम के लिए। Have you ever thought what that purpose is? क्या आपने सोचा है कि वो कौन सा ये काम है जिसके लिए प्रभु ने आपको यहाँ पे भेजा है? Turn with me for a moment to the book of Jonah, and I'll read only the first 3 verses. The word of the Lord came to Jonah, the son of Amittai. Go to the great city of Nineveh and preach against it, because its wickedness has come up before me. But Jonah ran away from the Lord and headed for Tarshish. He went down to Joppa, where he found a ship bound for that port. After paying the fare, he went aboard and sailed to Tarshish to flee from the Lord. यहोवा का ये वचन अमिताई के पुत्र योना के पास पहुंचा। उठकर उस बड़े नगर निनवा को जा और उसके विरोध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तशरीक हो भाग जाने के लिए उठा और यपो नगर के जाकर तशरीश जाने वाले एक जहाज पाया और बड़ा देखकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ होकर यहोवा के सम्मुख से तशरीश को चला जाए। May God bless His word. परमेश्वर अपने इस वचन को बरकत दे। May we learn what God wants us to learn this morning, and may I be able to deliver what God has for you. कि आज परमेश्वर अपने वचन से बात करे और मैं खुदावंद के वचन से जो आपसे बात करना चाहता है उसे आप तक पहुंचाने पाऊं। Just stand for a moment क्या हम अपनी जगह पर खड़े हो सकते हैं एक समय के लिए and turn around and say to somebody, God loves you. और आप अपनी दाईं और बाईं ओर देखें और अपने साथी से कहें कि प्रभु आपसे प्रेम करता है। And turn around and say also, I am so glad that you're here with us to worship God this morning. और उनसे कहिए कि हम बहुत खुश हैं आज आप हमारे पास यहाँ पर इकट्ठे मिलकर प्रभु की महिमा करने के लिए जुड़े हैं। Okay, come on, say that to each other, not to me. कहिए एक दूसरे से, मेरी और नहीं बल्कि एक दूसरे से कहिए। Father, we thank you this morning for your people, and that may they learn what you have for them. In Jesus' name, amen. Please sit. आप बैठ सकते हैं। Week after week, month after month, year after year,
Many of us have been in the church. हफ्तों के बाद, दिनों के बाद, सालों के बाद हम वापस चर्च आते हैं। Some कई come because they have a need. कोई आता है क्योंकि किसी ज़रूरत है, Some come for fellowship. कई आते हैं ताकि वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर फेलोशिप, And some come because they just want to be with the people of God and worship God together. और कई चाहते हैं कि वो परमेश्वर के बच्चों के साथ मिल सकें और प्रभु की एक हजूर में एक हिस्सा पा सकें। But realize this is not the place where God lives. पर ये पूरी याद रखें कि ये वो जगह नहीं है जहाँ पर प्रभु रहता है। God no longer lives in man-made buildings. प्रभु कभी भी लोगों के हाथों से बनी हुई दीवारों में जो बिल्डिंग्स में नहीं रहता। We pay a lot of effort to buildings, but God is not really interested in building, because the building He designed Himself and was built for Him, He allowed it to be destroyed. और प्रभु जो है वो नहीं चाहता कि हम इन जो दीवारों के बीच ही बने रहें, क्योंकि उसने उस दीवार को तोड़ गिराया था। From the very beginning, God has been interested in one thing and one thing only, is to have fellowship with His creation. और प्रभु शुरुआत से ही उसके दिल में यही उसके जहन में था कि वो अपनी बनाई हुई रचना के साथ जो है फेलोशिप कर सके। So God is interested in a place that we can have and worship together, so that all of us can be in one place, but the real temple of God is your physical body. परमेश्वर चाहता है कि हम संगति कर सके और हम मिलजुल कर उसकी कलीसिया में आए, पर परमेश्वर जो मंदिर में रहता है वो है हमारा दिल। Do you really understand that? क्या आप ये बात को जानते हैं? See, earlier someone shared that you spent time cleaning this place yesterday. Really wonderful. But how much effort do we spend cleaning this, the temple of the Holy Spirit, making sure that it is cleansed by the Word of God? किसी ने थोड़े समय पहले यहाँ पर शेयर किया था कि हमने बहुत लगाकर यहाँ पर कलीसिया को साफ किया है, पर एक नज़र अगर हम इस मंदिर के ऊपर डालें, जिस मंदिर में हम रहते हैं, हम कितना जोर लगाते हैं और कितनी कोशिश करते हैं कि ये जो मंदिर है हमारा ये साफ रहे। So let's see what God is trying to do. आए हम देखें कि परमेश्वर क्या करना चाहता है। So we all know that the Bible tells us from the very beginning that man separated himself from God. हमने बहुत पहले से वचन ने बताया हमें कि जो इंसान है वो परमेश्वर से दूर हुआ। That separation that was created by man being disobedient to God, God has always been trying to restore and reconcile that relationship. और जो इंसान ने परमेश्वर के खिलाफ गुनाह किया था, परमेश्वर की तभी से ये इच्छा जारी है कि वो वापस इंसान के साथ फिर से जुड़ सके। The entire Bible is all about the story of mankind, how God loved man so much and how He's trying to pull him with cords of love. और जो भी हम पढ़ते हैं हम यही समझते हैं कि परमेश्वर की जो इंसान के साथ शुरू से जुड़ी हुई एक कहानी है, जिससे प्रभु अपने जोर से हमें अपनी ओर खींचता है। You can see that when we read those verses, prophet Jonah was sitting with God. और हम देखते हैं कि जब हमने कलाम से वो कलमे पढ़ी तो वहाँ पर जो यूना है वो परमेश्वर के साथ बैठा है। How long he had been in prayer, no, it doesn't tell us, but it says the word of the Lord came to Jonah. और हमें ये नहीं पता कि कितना समय वो परमेश्वर की हजूरी में उसकी उस दुआ में बैठा था, पर हमें ये ज़रूर पता है कि जो प्रभु का कलाम है, जो उसका वचन है, वो यूना तक आया। Sometimes we pray to God, we give Him our list, we say, God, I need this healing, but do we ever wait for God to speak to us personally? कई बार हम प्रभु को एक चिट्ठी दे देते हैं जिसमें हमारी जो ख्वाहिशें हैं वो लिखी होती हैं कि प्रभु यहाँ पर मुझे चंगियाई चाहिए, पर क्या हम उस समय पर बैठकर प्रभु के दिल को खोजने की कोशिश करते हैं? God told Jonah
a very simple thing. और प्रभु ने योना को सिर्फ एक बहुत ही सिंपल बात बताई Go to the great city of Nineveh. कि तुम निनवा के शहर में जाना, And because God said, I've seen its wickedness. क्योंकि मैंने उनकी बुराई को देखा है। So what was God about to do? He was about to destroy that city. और प्रभु अब क्या करने जा रहा था? प्रभु उस शहर को तबाह करने की तैयारी में था। Just like he destroyed Sodom and Gomorrah, that he was about to do the same to the city of Nineveh. तो जैसे प्रभु ने सदोम और गोमरा के शहर को ख़त्म किया था, वैसे ही प्रभु की ये तैयारी थी कि वो निनवा के शहर को भी ख़त्म करे। So today we're going to look at this journey of prophet Jonah and then see the difference between the journey of Christ. और हम अब योना की ज़िंदगी को देखेंगे और देखेंगे कि क्या इसमें एक फ़र्क था। So the journey that we're going on today is a journey with a runaway prophet and a savior who never wavered from the task that was given to him by Father God. और जो आज हम कहानी के बारे में देखेंगे वो एक कहानी है जिसमें एक योना जो प्रॉफिट है, वो अपनी जो उसकी जर्नी है, जो जहाँ पर उसने जाना है उससे भाग रहा है, और दूसरी ओर हम देखेंगे कि प्रभु यीशु जो अपनी लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। This is perhaps not just the story of Jonah, it could be our own story. ये सिर्फ योना की स्टोरी ही नहीं है, ये हमारी भी कहानी हो सकती है। Just imagine you're in your place, in your home, and you're doing something you really are enjoying and you're relaxing. आप सोचें कि आप अपने घर में अपने समय में बहुत आनंद ले रहे हैं And you're thinking of God perhaps or something else. और आप परमेश्वर को कुछ और ही समझ रहे हैं, Or you're thinking of something else other than things of God. और जहाँ आप परमेश्वर के खिलाफ कोई और ही चीज़ों को सोच रहे हैं, Whatever you're doing, जो and suddenly God speaks to you. पर फिर परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, What are you going to do? आप क्या करेंगे? Perhaps you've never heard the voice of God. पर आपने कभी परमेश्वर की बात तो सुनी, आवाज़ तो सुनी ही नहीं। Perhaps you know the voice of God. आपको परमेश्वर की आवाज़ का तो पता है, And suddenly you realize, whatever way, that God is speaking to you. पर एकदम आपको ये पता चलता है परमेश्वर अपने तरीके से आपके साथ बात कर रहा है। So God says, go and do this. आपसे कह रहा है आओ और इसे करो। What will you do? आप क्या करेंगे? Will you think of all the things that need doing? क्या आप उन सब चीज़ों के बारे में सोचेंगे जो आप कर रहे हैं? Or perhaps He's sending you someplace where you don't want to go. क्या आपको प्रभु वहाँ पर भेज रहा है जहाँ पर आप नहीं जाना चाहते? See, this is what happened to Jonah. यही योना के साथ भी हुआ। Jonah was told to go to the city of Nineveh. और योना को बताया गया कि तू नीनवा के शहर जा, Jonah didn't want to go. और वो नहीं चाहता था कि वो नीनवा के शहर He जाए। had heard the voice of God. He knew God. वो परमेश्वर को तो जानता था, उसने खुदावन की आवाज़ भी सुनी थी, He was a prophet of God. वो परमेश्वर का एक भविष्यद्वक्ता भी था। You would think a prophet would run and obey God's command. आप सोचेंगे कि परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता जो है उसके खादम जो है वो उसकी आवाज़ को सुनेंगे और उसकी आवाज़ को सुनकर उसके पीछे चलेंगे। But what does this man do? पर ये इंसान क्या कर रहा है? He ran away from what God wanted him to do, और वो वहाँ से भाग रहा है जो परमेश्वर चाहता है कि वो करे। he goes to the coast, the city of Joppa, and gets on a boat which is going away from the city he was told to go to. और जोप्पा के नगर में वो जा पहुँचा जहाँ पर उसे कहा गया कि तू उस शहर पर जा, वो दूसरी ओर चला गया। He didn't say no to God, I'm not going, उसने ये नहीं कहा कि प्रभु मैं नहीं जाऊँगा, but he just went the opposite way. पर वो दूसरी ओर चला गया। How many of us have done the same thing as Jonah? और आज हम में से कितने लोगों ने योना की तरह ही ऐसे किया? We know what God wants us to do, हम yet we're going in a different direction. हम जानते तो हैं कि परमेश्वर क्या चाहता है हमारे जीवनों से, पर हम कहीं और ही चले जा रहे हैं। You know why he ran? आपको पता है कि क्यों वो दूसरी दिशा की ओर भागा? He
didn't run because of fear. वो इसलिए नहीं भागा कि उसके दिल में कोई डर था What would happen to him? कि उसे क्या होगा, He ran वो इसलिए भागा from God's mercy for the people he didn't like. वो परमेश्वर की दया से भागा जो वो जिन लोगों को वो नहीं अच्छा लगता था। He hated the people of Nineveh और वो निनवा के लोगों से बहुत नफरत करता था because those people have attacked Israel in the past many times. और उन लोगों ने इज़राइल के शहर के ऊपर बहुत बार उस देश के ऊपर हमला भी किया था। Whatever the reason, we're not told why he disliked the city of Nineveh, but he just didn't want to go there. हमें ये नहीं पता और कलाम भी ये नहीं बताता कि किस कारण के लिए वो नफरत करता था निनवा के शहर और उनके लोगों के लिए। So one of the challenges you'll find later on in the book of Jonah is when he preaches, he says in 40 days God is going to destroy the city when he starts to preach. और जो हम चैलेंज इस कलाम में जब इस है उसमें ये चुनौती हमें पता लगती है कि उसने प्रचार किया और उसने भविष्यवाणी की कि परमेश्वर इस शहर को 40 दिन में खत्म कर देगा। Perhaps he doubted God would destroy, and he's saying God is going to destroy the city, but in him he didn't know perhaps that it was truly the word of God. उसे ये तो पता था कि ये जो है परमेश्वर की ओर से है, उसने चुनौती दी उन्हें कि 40 दिनों में परमेश्वर इस शहर को ख़त्म कर देगा, और उसे ये नहीं पता था कि ये परमेश्वर का वचन ही था जो उसके जहन में आ रहा था। So perhaps he doubted what God had given him. और वो उस चीज़ के ऊपर शक करने लग पड़ा जो परमेश्वर ने उसे दी। How many of you have heard God, yet you're still waiting for something to take place? और कितनी बार आपने प्रभु को सुना है, उसकी आवाज़ को सुना है, और फिर भी आप इंतज़ार कर रहे हैं। The question arises, are we willing to go even when it's uncomfortable? और सवाल आपसे ये है, क्या आप तैयार हैं जाने के लिए, चाहे वो रास्ता, चाहे वहाँ पर आसानी ना हो। We know the story perhaps, but in the end, the ship that he's traveling on gets in trouble in the ocean, and they find that Jonah is the cause of all their troubles, the sailors, and then they throw him overboard, and the sea calms down. और वहाँ पर हम देखते हैं कि जब जो वो किश्ती जब वहाँ से जा रही है, तो वहाँ पर वो एक स्टॉर्म में वहाँ पर फंस जाते हैं, और वो सोचते हैं कि ये किसके कारण हो रहा है, और जब वहाँ पर उन्हें पता लगता है कि ये सब कुछ योना के कारण हो रहा है, तो वो उस किश्ती से उठाकर बाहर समुंदर में फेंक देते हैं। What a terrible place to end up, inside the fish. और ये कितनी भयंकर बात है, कहाँ पर जो जोना था वो पहुँच गया, वो मछली के पेट में पहुँच गया। That is a miracle in itself that he survives inside the fish for 3 days. और वो इस बात में एक बड़ा चमत्कार है कि वो मछली के पेट में 3 दिन जिंदा रहा। But somebody put it this way. पर किसी ने इस तरीके से बयान किया It was the belly of grace. कि वो जो कमर थी वो परमेश्वर के अनुग्रह की थी। See, God had been gracious to teach him a lesson that he wanted him to do something, and Jonah had to come to terms with that God was making a way for him to be going to where he had been commanded. और जोना था जो किसी और ही रास्ते में जा रहा था, पर वो परमेश्वर का अनुग्रह था उस पेट में, जिसके कारण जोना ने इन चीज़ों को वापस सोचा। God sent the fish not to punish Jonah, but to bring him to an understanding and revelation that Jonah was required to do this. और परमेश्वर ने उस मछली को इसलिए नहीं भेजा कि वो जोना को खा जाए, उसने इसलिए भेजा ताकि वो वहाँ पर अपने जो वचन को बयान कर सके। Sometimes your darkest place is where God reshapes your calling. और कई बार आपके जो वो कोने होते हैं ज़िंदगी के, आपके जीवन में वो समय होते हैं जिसमें परमेश्वर आपकी ज़िंदगी के मोड़ों को बदल देता है। So you may think Jonah failed and that's why he's in the fish, but it was to reshape Jonah's thinking that God put him in the fish.
और जोना के बारे में जब हम सोचते हैं कि वो खुद के लिए कुछ और ही तरीके से सोच रहा होगा कि परमेश्वर ने उसे किसके लिए मछली के पेट में भेज दिया। Sometimes we ourselves, our circumstances, for whatever reason, become so hard for us, we begin to wonder where God is. और कई बार हमारे जीवन के हालात इतने मुश्किल हो जाते हैं और हम ये सोचने लग पड़ते हैं कि परमेश्वर कहाँ पर है अब। And then we think, what about all those promises that God makes in His Word? Where are you, God? और तब हम उन वादों के बारे में सोचते हैं जो खुदावंद अपने कलाम में करता है, और फिर हम कहते हैं कि प्रभु आप कहाँ पर हैं। But God is always trying to shape us into what He wants us to become. और परमेश्वर हमेशा हमें वैसे मोड़ना चाहता है कि जैसे वो चाहता है हम वैसे बन सकें। Are you going through such a circumstance? क्या आप अपने जीवन में उन हालातों से गुजर रहे हैं? Perhaps you're struggling with job. शायद आप काम के सिलसिले में गुजर रहे होंगे उन चीज़ों से। Perhaps you're working but you don't have enough money coming in to pay for what you need. शायद आप काम भी कर रहे हैं पर आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि जो आप उन चीज़ों के लिए जो आपके कर्जे हैं उन्हें पे कर सकें। Perhaps you're struggling with health issues शायद आप हेल्थ इश्यू से भी गुजर रहे होंगे, or family issues where family is causing you stress. और शायद आप अपने परिवारों के भी सिलसिलों से गुजर रहे हैं जिनके कारण आपको वो दुख हो रहे हैं। See, Jonah resented the fact that if he went and preached the message, perhaps the city of Nineveh would repent. और जो जोना था वो यही बार बार उस चीज़ को पुश कर रहा था कि वो ये नहीं सोच रहा था कि वो वहाँ पर जाए निनवा के शहर में और उसे प्रचार करे, शायद वो बच सके और अपने पापों के लिए He माफ़ी had मांगे। such dislike for people, और वो उन लोगों को पसंद नहीं करता था, and he didn't want them to be saved. वो नहीं चाहता था कि वो बचाए जा सके। Somehow God enabled this fish to vomit Jonah on dry land again. और फिर कैसे हुआ कि जो मछली थी उसने उगला और जोना को एक सूखी जगह पर फेंक दिया, And Jonah reluctantly goes to Nineveh. और जो जोना था तब वो निनवा के शहर में पहुंच गया। I can relate to Jonah. मैं जोना के साथ अपने आप को रिलेट कर सकता हूँ। When God called us to come to Canada, जब परमेश्वर ने हमें बुलाया कनाडा की ओर, that's the one place I didn't want to come to. और मैं झिझकता था इस देश में आने के लिए, Not because I thought of Canada as a bad country or I could do anything better. I just didn't want to come to Canada. ये इसलिए नहीं सोचता था कि शायद कनाडा एक बेकार देश है, इसलिए नहीं सोचता था कि शायद मैं कहीं और बड़ी जगह पर जा सकूं। And it wasn't that when I came to Canada I would have a better job or anything, because that wasn't the intention of coming to Canada. और इसलिए नहीं था कि मैं बड़ी यहाँ पर आके एक जॉब मुझे मिल सके, ये विजन के साथ हम यहाँ पर नहीं आए। Because the job I had in where I lived was one of the best jobs I could have ever got in my life. क्योंकि जो मुझे काम जहाँ पर मैं रहता था उस समय वो सबसे बड़ा अच्छा काम था मेरे लिए, और उसके बाद वो मुझे कभी नहीं मिलता। But wherever I would go, पर जहाँ भी मैं जाता, for 2 years God kept sending people that I didn't know saying, go to Canada. और जहाँ पर भी मैं जाता, जहाँ पर भी मैं रहता, लोग प्रभु अपने लोगों को भेजता जिन्हें मैं नहीं जानता था, और बार बार वो मुझे यही कहते कि कनाडा में चले जाओ। I would say no thank you. और मैं यही कहता था कि मैं नहीं जाऊंगा कनाडा। So for different reasons I was like Jonah, not wanting to come to this country. और कई सिलसिलों में मैं जोना के तरीके था, क्योंकि मैं झिझकता था और मैं नहीं आना चाहता था कनाडा में। But when I finally understood, पर जब मैंने असल में समझा, I said to God, okay, I'll go. और मैंने जब उस बात को समझा तो मैंने प्रभु को कहा कि प्रभु मैं जाऊंगा, I'll make 2 conditions with you. और मैं आपको 2 कंडीशंस भी दूंगा उसके साथ। Have you ever negotiated with God? क्या आपने प्रभु के साथ कभी नेगोशिएशन की है? Huh? How many of you have ever negotiated with God?
क्या आपने प्रभु के साथ हो? आप में से कितने लोगों ने परमेश्वर के साथ नेगोशिएट किया है? I negotiated with God. मैंने परमेश्वर के साथ नेगोशिएट किया। I said, I will go on two conditions. मैंने कहा कि प्रभु मैं 2 शर्तों के ऊपर जाऊंगा। Number one, पहली शर्त ये है, when I leave this country, I must be debt free. जब मैं इस देश को छोड़ूंगा तो मेरे जीवन में कोई कर्जा नहीं होगा। Number two, और दूसरी शर्त ये थी, you must make a way for me to get a visa. और आप मेरे लिए एक रास्ता बनाएंगे जिसके कारण मुझे कनाडा का वीज़ा मिलेगा। Everybody I know here, or many people I should say here in Canada, they all want Canadian PR status. और मैं जितने भी जनों को यहाँ पर जानता हूँ, जितने भी शायद मुझे मिले होंगे, वो यही चाहते हैं कि उन्हें कनाडा की पीआर और कनेडियन एक पासपोर्ट मिल जाए। And I said, God, you meet these two conditions and I'm prepared to go. और मैंने प्रभु को कहा कि प्रभु आप इन अगर 2 शर्तों को पूरा कर देंगे तो मैं तैयार हूँ कनाडा में जाने First के लिए। one. पहली, God enabled me to receive so much money that it paid off my mortgage. और परमेश्वर ने इतनी बरकत मेरे जीवन में भेजी जिसके कारण जो मेरी मॉर्गेज थी वो सारी पे ऑफ होगी। Second thing is now the visa. और दूसरी ये थी कि अब वो वीज़ा कैसे मिलता। I used to come to Canada for business purposes, और मैं कनाडा में बहुत बार बिजनेस के सिलसिले में आता था and I knew somehow the process. और मुझे थोड़ा तो प्रोसेस के बारे में पता था। I knew the point system. I needed X number of points, whatever they were. और मुझे पता था उस समय के कितने पॉइंट्स मुझे चाहिए होंगे कनाडा की पीआर के लिए। And I was always a little short because engineering was regarded as one point only. और मैं हमेशा उन पॉइंट से पीछे रहता था क्योंकि जो इंजीनियरिंग की जब बात करते हैं उससे सिर्फ एक ही पॉइंट मिलता था। And one day, और What- एक दिन when I decided that God wanted me to come to Canada, I Jab- went and put my application into the Canadian High Commission. और एक दिन जब मैंने समझ लिया कि प्रभु चाहता है मैं यहाँ पर आए तो मैंने ये मैंने निर्णय बनाया और मैंने अपनी एप्लीकेशन थी वो काउंसिल में दे दी। I went to the High Commission, और मैं हाई कमीशन के पास चला गया handed in my form, और मैंने अपना फॉर्म उन्हें दे दिया। and as I sat down waiting for him to process the form, और कि वो इस एप्लीकेशन को इस फॉर्म को प्रोसेस करते I looked up an immigration newspaper that was there. और एक न्यूज़पेपर एक पत्रिका को देखा I was reading it slowly, और मैं उस पत्रिका को बहुत धीरे से पढ़ रहा था and all of a sudden I came to where they said designated professions required for Canada. और एकदम मैं उस जगह पर आया जहाँ पर लिखा था कि एक जो डेजिग्नेटेड प्रोफेशन होते हैं उनकी कनाडा में खोज है। And my profession, which is communications and software engineering, was listed went from 1 point to 10 points. और जो मेरी वहाँ पर जो मेरी थी स्पेशलाइजेशन थी वो थी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और कम्युनिकेशन में। और जब मैंने वहाँ पर पढ़ा तो देखा कि वो 1 पॉइंट से 10 पॉइंट उसके बढ़ चुके थे। I didn't have to ask anyone for a visa. और मुझे किसी को वीज़ा मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी। I didn't ask anyone to pay my debt off. वो मुझे किसी को पूछना नहीं पड़ा कि मेरे जो कर्जा है वो ख़त्म हो जाए। Both conditions God met. और दोनों जो शर्तें थी परमेश्वर ने मेरे जीवन में पूरी की। You know what my motive for making those two conditions was? क्या आपको पता है कि मेरी सोच उसके पीछे क्या थी जब मैंने वो 2 शर्तें परमेश्वर के आगे रखी? I thought, how could somebody give me £80,000 to pay off a mortgage? और मैं सोचता था कैसे होगा कि कोई मुझे 80,000 पाउंड देगा ताकि मैं अपनी मॉर्गेज को पे ऑफ कर सकूं। Who would give me a visa when I didn't have a job or anything in Canada that would enable me to come? और कोई मुझे कनाडा का वीज़ा कैसे देगा क्योंकि मेरे पास तो कोई कनाडा में जॉब का ऑफर ही नहीं है। But guess what? और सोचिए क्या हुआ? The living God we worship is able to do anything he desires. जो जिंदा परमेश्वर जिसकी हम भक्ति करते हैं वो जो चाहे वो कर सकता है। So Nineveh city got the message. Jonah went and preached and said, in 40 days the city will be destroyed by God. और जो नीनवा के शहर था उसके ऊपर वचन उसमें जा पहुंचा और वहां पर जोना जब गया, जोना ने वहां पर प्रचार किया। उसने कहा, भविष्यवाणी की, उसने कहा कि 40 दिन में ये शहर जो है वो खत्म हो जाएगा। The Bible tells us that the king
heard the message. और बाइबल हमें यही बताती है कि जो वहाँ का राजा था निनवे शहर का, उसने ये वचन सुन लिया। He heard the prophet Jonah proclaiming that God was going to destroy this city. और उसने भविष्यद्वक्ता योना के आवाज को सुन लिया और उसने ये समझ लिया कि परमेश्वर ने ऐलान कर दिया है अपने वचन के द्वारा कि वो इस शहर को खत्म कर देगा। Suddenly, we don't know why, but the king declared a fast. और हमें पता नहीं किस कारण पर एकदम वहां पर जो शहर का राजा था उसने कहा कि हम सब मिलकर जो है वो रोजे रखेंगे। Not only the people would fast, सिर्फ लोग ही रोजे नहीं रखेंगे, but every animal in the city would also fast. पर जो हर एक जानवर इस शहर में है वो भी रोजा रखेगा। Can you imagine the animals being forced to fast as well? सोच सकते हैं कि जो जानवर हैं उन्हें भी रोजा रखने में मजबूर किया गया। Forget about the animals. We are finding it difficult to spend 5 minutes with God. और जो जानवर हैं उनकी बात तो छोड़ ही दें, हम इंसान भी 5 मिनट परमेश्वर की हजूरी में नहीं बैठ सकते अच्छे तरीके से। We don't want to hear from God just in case He asks us to do something. और हम नहीं सुनना चाहते हैं कि परमेश्वर की आवाज को कि शायद वो हमें बोल देगा, हमें वो करना पड़ेगा। You would have thought the prophet, a man of God, would rejoice when the whole city responds. आप सोचेंगे कि वो भविष्यद्वक्ता परमेश्वर का खादम वो सुन के बहुत खुश होगा कि वो सारे शहर ने नगर ने निर्णय ले लिया कि वो उठेंगे और वो फास्ट करेंगे। But you know what? When the city responded to God's call and repented, Jonah didn't rejoice, but he got angry. पर आप जानते हैं तो वहां पर क्या हुआ जब पूरा शहर उठा माफी मांगने के लिए, उन्होंने रोजे रखे, उस समय क्या हुआ? उस समय जो योना था वो कहर में उठ पड़ा। Why was that? और ये ऐसे क्यों हुआ? Because Jonah's heart was not in tune with God. क्योंकि जो योना का दिल था वो परमेश्वर के साथ नहीं जुड़ा था। Are we obeying but not loving what God is asking us to do? क्या हम परमेश्वर की मर्जी को अपने जीवन में पूरा कर रहे हैं कि उसकी आवाज को सुन रहे हैं कि नहीं? Are we obeying but not loving what God has given us? क्या हम उस आवाज को सुनकर उसके ऊपर चल रहे हैं पर उसकी आवाज को नहीं सुन रहे? Now let's turn to Jesus. और अब हम यीशु की ओर देखेंगे। Jesus was a prophet and the savior of mankind. और परमेश्वर यीशु मसीह एक भविष्यद्वक्ता भी था और इस सृष्टि का बचाने वाला भी था। Jesus was with his disciples many times on mountaintops. और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ बहुत बार उन पहाड़ों के ऊपर भी था। Jesus had also been given a task. और परमेश्वर यीशु को भी एक काम सौंपा गया। What was the task? और वो काम क्या था? For he was headed for the cross. कि वो क्रूस की ओर बढ़ रहा था। He knew that he would have to go to the cross. उन्हें पता था कि वो सलीबी मौत को जरूर पाएगा और उसकी ओर बढ़ रहा था। He didn't run from the task, he kept focused on the cross. और प्रभु यीशु उस काम से भागा नहीं पर वो काम की ओर बढ़ता चला गया। He didn't hate the people who were away from God. He loved them and he was willing to go to the cross as a sacrifice to pay for the price of their sins. और परमेश्वर के लोग जो उसे प्रेम नहीं करते थे, खुदावंद यीशु ने उनसे नफरत नहीं की, बल्कि प्रभु यीशु चाहता था कि वो उनके साथ परमेश्वर को जान सकें। He wanted to restore that relationship with God and be reconciled with mankind. वो चाहता था कि परमेश्वर के साथ इंसान का रिश्ता वापस जुड़ सके और वापस वही संगति शुरू हो सके। So where Jonah was running away or recoiled from the people, Jesus reached out and embraced the lost people. और एक तरफ हम देख रहे हैं कि जोना जो लोगों के प्रति नफरत करता था उनसे भाग रहा है एक गुस्से से, और दूसरी ओर हम प्रभु यीशु और देखते हैं कि जो
परमेश्वर से नफरत करते हुए लोग हैं उन्हें वो प्रेम कर रहा है, उनकी ओर वो बढ़ रहा है ताकि जो उनका रिश्ता है वो वापस जुड़ सके। Whereas Jonah judged the people not worthy of saving, Jesus embraces the people who resent him and don't love him. और जहां पर योना ने सोचा और उसने लोगों के ओर ये अपने मन में ढार लिया था कि ये लोग जो हैं वो पाप कर रहे हैं और ये नहीं बचाए जा सकेंगे, और दूसरी ओर हम परमेश्वर यीशु की ओर देख रहे हैं जिसने लोगों को जज नहीं किया पर उन्हें परमेश्वर की ओर लेकर जाने की कोशिश की। Jesus' mission was to save mankind. और परमेश्वर यीशु का एक ही लक्ष्य था, वो चाहता था कि ये सृष्टि जो है वो बचाई जा सके। He healed the people, raised people from dead, blind eyes were opened, lepers were healed, hundreds and hundreds perhaps were healed when Jesus touched them. और जब प्रभु यीशु ने अपना हाथ लोगों के ऊपर रखा तो उसने चंगियाई को बांटा, उसने जो कोढ़ था उसे दूर किया, उसने बंद आंखों को खोल दिया। जब उसने लोगों के ऊपर हाथ रखा तो उन्होंने चंगियाई पाई। Jesus died on the cross, willingly went and died on the cross. प्रभु यीशु अपनी मर्जी से पूरे दिल से उस सलीबी मौत को उसने अपने जीवन के में पाया और हमारे लिए उस क्रूस के ऊपर वो चढ़ा, So that the sin of mankind, the price could be paid, ताकि इंसान के जो पाप का एक प्राइस है उसे वो पूरा दे सके। so the mission that Jesus came, he accomplished. और जो प्रभु यीशु काम के लिए धरती के ऊपर आए उसने वो पूरा किया। So what happened to the mission? Jesus is now in heaven. और अब उस काम का क्या हुआ, उस लक्ष्य क्या हुआ? अब प्रभु यीशु स्वर्ग में हैं। Is the mission now ended? क्या वो काम अब खत्म हो गया? No. नहीं, The mission has been handed to those who call themselves his disciples. और अब वो काम उन्हें मिल चुका है जो अपने आप को प्रभु यीशु के चेले मानते हैं। See, people misunderstand when Christians preach the gospel and ask people to come and accept Jesus as their savior. और बहुत से लोग इन चीज़ों को गलत समझते हैं कि जब एक मसीही लोगों को वचन बताता है और उन्हें कहते हैं कि परमेश्वर यीशु को अपनाएं, They say, why do you want to change their religion? और वो लोग बोलते हैं कि क्यों आप लोगों के जो धर्म हैं उन्हें बदलना चाहते हैं। What they don't realize, it is the command of Jesus to take the good news to the people that are lost in the world. और उन्हें तो ये बात का पता ही नहीं कि ये परमेश्वर यीशु का ही एक वचन है। वो चाहता है कि हम इस खुशखबरी को औरों तक पहुंचाएं और जिन कानों ने नहीं सुना वो भी सुने और बचाए जा सकें। And when before he went to heaven, in Matthew 28:18 to 20, he says, go and make disciples. और परमेश्वर यीशु स्वर्ग में उठाए जाने से पहले उसने मत्ती 18 उसके 18 और 20 वचन में उस यही कहा कि जाओ और चेले बनाओ। Why is he saying go? और उसने ऐसे क्यों कहा कि जाओ? Because the people in the world are not going to come to church. क्योंकि जो लोग इस दुनिया में हैं वो कलीसिया में खुद चल के नहीं आएंगे। Jesus could have waited in heaven, but he came into this world so that he could reach people. परमेश्वर यीशु अगर चाहता तो वो स्वर्ग में बैठा इंतजार करता कि हम वहां पहुंच सके, पर उसने क्या किया? वो आया इस धरती के ऊपर ताकि हमें वो बचा के यहाँ से लेकर जा सके। He came and expressed his love for us by dying on the cross. वो आया और उसने अपने प्रेम को बयान किया ताकि वो उस तरीके से जैसे उसने इस क्रूस के ऊपर अपने आप को दे दिया। Have you heard of a relay race? Do you know what a relay race is? Anyone know? Relay race? Anyone know? Do you know what it is? Okay, some of you know. It's a race on a racing track. और जो एक तरह की रेस होती है जो एक ट्रैक में होती है, And they run a mile, और वो एक मील की जो होती है वो रेस, but there are 4 runners. वहाँ पर 4 जो हैं दौड़ने वाले रनर्स होते हैं। First one will go round. और जो पहला वो दौड़कर पूरा घूमेगा, He's carrying what they call a baton in his hand. वो अपने हाथ में एक बटोन को कैरी करता है। And when he comes to the end of his round, he hands it to the next person. और वो क्या करता है, जब अपने
अपने राउंड को फिनिश करता है तो वो बटोन को जो उसके आगे खड़ा होता है उसे पकड़ा देता है, and that person runs around as well. और जो दूसरा है वो फिर से उसी चक्कर में दौड़ता है। So what did Jesus do? और यीशु ने क्या किया? Jesus completed his task. परमेश्वर यीशु ने अपना मकसद पूरा किया Then he handed the baton to you and me. और उसने प्रभु यीशु ने वो बटोन जो है वो आपको और मुझे दे दिया। So are you ready to run with the baton आप तैयार that Jesus has given you? आप तैयार हैं उस बटोन को पकड़ने के लिए और उसके साथ पकड़कर दौड़ने के लिए? Jesus hands the mission to be completed to us. परमेश्वर यीशु ने ये जो लक्ष्य वो हमारे हाथों में दे दिया ताकि हम उसमें पूरे हो सकें। So go, love, teach and reach. और जाएं, प्रेम करें, सिखाएं और बांटें। Don't teach just out of obedience. That's a good thing, but teach out of love for the lost people because they're going to hell and you are able to share the word of God with them which could bring them into the kingdom of God, but teach it because you love the lost like Jesus loved them. आप आज्ञाकारी बच्चे होकर इन चीज़ों को ना करें, इन चीज़ों को इन तरीके से करें क्योंकि आपके दिल में वो प्रेम है उन लोगों के लिए जो खोए हैं, जैसे परमेश्वर यीशु के दिल में उन लोगों के लिए ये प्रेम था। In the book of Isaiah, chapter 6, verse 8, it says, God says, whom shall I send? और यशाया की किताब उसका 6वां जो चैप्टर है 8 नंबर वचन में परमेश्वर ने कहा कि मैं किसे भेजूं? And Isaiah responds, here I am, send me. और यशाया वहां पर कहता है प्रभु मैं हूं, मुझे भेज। That's the difference between being reluctant like Jonah and being in readiness to go like Isaiah. ये वहां पर फर्क है कि हम कैसे जोना की तरह चाहे तो झिझका सकते हैं और चाहे तो हम यशाया नबी की तरह तैयार हो सकते हैं। You are to be the light in the world that shines the glory of Christ. और आप उस देश में उस शहर में वो रोशनी बनना चाहते हैं जो प्रभु यीशु के लिए चमकती है। Where is your Nineveh? आपका नीनवा कहाँ पर है? Where is God sending you? To whom is God sending you? परमेश्वर आपको किसके लिए भेज रहा है और कहाँ पर भेज रहा है आपको? You can continue to come to church every Sunday and worship. That's wonderful. But what about reaching the lost, which is the mission of the church and mission for me and you? और आप इस कलीसिया में हर हफ्ते तो आ सकते हैं, बहुत ही अच्छी बात है, पर वो हम कैसे पहुंच सकते हैं उन तक जो खोए हुए लोग हैं, क्योंकि यही एक लक्ष्य है कलीसिया का, यही एक लक्ष्य है मेरा और मेरा विश्वास है लक्ष्य आपका भी होगा। Let's stop running from what God is asking His people to do. और आए हम बंद कर सके दौड़ना उन चीजों से जो परमेश्वर अपने लोगों को कह रहा है। Let's start reaching the people He wants us to reach. आए हम उन लोगों तक पहुंच सके जिन लोगों तक परमेश्वर चाहता है कि हम पहुंच पाएं। The world outside doesn't need reluctant believers. और जो दुनिया है वो ये नहीं चाहती कि वो झिझकते हुए विश्वासियों को मिले। It needs bold, joyful, merciful believers. और वो उन विश्वासियों को मिलना चाहती है जो तगड़े हैं, जो तैयार हैं, जिनमें प्रेम बढ़ा हुआ है। So are you ready this morning to say, here I am, Lord, send me? क्या आप तैयार हैं आज की सुबह परमेश्वर से कहने के लिए, हे प्रभु मैं हूँ यहाँ पर, मुझे भेज? Or are you still going to focus on the things that and desires that you have and not what God is asking you to do? क्या आप उन्हीं चीज़ों में वापस चले जाएंगे जिनके ऊपर आपकी आंखें हैं, आपके जीवन की ज़रूरतें हैं, जहाँ शायद आप उन चीज़ों में वापस जाने की परमेश्वर चाहता है? The choice is yours.
ये जो चॉइस है ये आपकी ही है। Either you become an obedient servant, चाहे तो आप एक परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करने वाले बच्चे उसके बन सकते हैं, or you become a servant that's like Jonah. और आप योना की तरह भी बन सकते हैं। Which one do you want to be? कौन सा आप बनना चाहते हैं? Will God say to you when you get to heaven, क्या प्रभु आपसे कहेगा जब आप स्वर्ग में पहुंचेंगे, well done, my faithful servant? बढ़िया मेरे बच्चे? Or will he say, okay, glad to see you, sit over there? और क्या वो आपसे कहेगा बहुत खुशी हुई आपको मिलकर, यहाँ पर आते हैं अब? Or will he hug you and say, you were faithful in what I gave you? और क्या वो आपको अपने सीने में लगाएगा और आपको कहेगा कि बहुत बढ़िया मेरे पुत्र, तूने मेरी आज्ञा का पालन किया। I'd like you to pray with me. मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ दुआ करें। Just close your eyes and you can repeat the prayer in your heart or out loud. आप अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं, अगर आपका दिल चाहे तो आप जुबान को खोल कर बोले, और आप अपने मन में भी ये दुआ कर सकते हैं। God, I invite your searching gaze into my heart. प्रभु जी, मैं आपको जो आपके खोजने वाले हैं उन्हें अपने दिल में बुलाता हूँ। Examine me through and through. प्रभु जी, मेरे ज़हन में जितना भी गहरा आप मुझे खोज सकते हैं उसे खोजें। Find out everything that may be hidden with me. और प्रभु जी, जो भी चीज़ें मुझ में छुपी हुई हैं उन्हें बाहर लेकर आएं। Put me to the test and shift through all my anxious cares. प्रभु जी, जो भी आप चाहते हैं मुझे उस टेस्ट में डालें और मुझे उससे बाहर निकालें। Father, today I choose to say yes to you. I say yes to your dream, to your destiny for my life. और प्रभु, आज मैं हाँ कहता हूँ तेरे लिए खुदावन, जो तूने मेरे लिए सपना रखा है, जो तूने मेरे लिए लक्ष्य, जो तूने मेरे लिए मार्ग रखा है। I will run my race for you alone. प्रभु, मैं ये जो मेरी दौड़ है मैं तेरे लिए दौड़ूंगा। I cast off every hindrance of weakness and sin in Jesus' name. और प्रभु, जो भी मेरे जीवन में कमियां हैं, जो भी मेरे जीवन में बोझ हैं, प्रभु मैं उन सब चीजों को तेरे ऊपर छोड़ देता हूँ। I declare the power of the blood of Jesus to overcome every demonic scheme that has been set against me. प्रभु, तेरे पवित्र लहू को अपने जीवन के ऊपर लगाता हूँ खुदावंद, और हर एक जो शैतान की ओर से मेरे जीवन में कोई काम है खुदावंद, उसे हम कैंसिल करते हैं। Its power is broken now in the name of Jesus. और उसकी जो शक्ति है वो टूट चुकी है यीशु के नाम में। Lord, I give you complete access to my heart, mind and soul. और प्रभु, मैं तुझे सारा रास्ता देता हूँ जो मेरे दिल की ओर जाता है। Reveal every hidden attitude or thinking pattern that could hold me back. और प्रभु, हर एक तरीके की सोच जो मुझे पीछे खींचे खुदावंद, उससे मुझसे बाहर निकालें। I bring it now to the cross and lay it down. और प्रभु, मैं आप उन सब चीज़ों को तेरे क्रूस के सामने लेकर आता हूँ, तेरे आगे रखता हूँ। I thank you, Father, for every good word or prophecy given to me. और प्रभु, हर एक अच्छा शब्द, जो भला शब्द जो तूने मेरे ऊपर बोला है, हर एक भविष्यवाणी के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। Something in my heart resonates with these words. There is more. और प्रभु, कुछ मेरे दिल में ऐसा है जो इन बातों को चाहता है कि ये ऐसी ही हैं और मैं इन्हें और चाहता हूँ। Father, I thank you for that. You are continuing your good work in me and that you are not finished yet. और प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ क्योंकि तेरे बड़े भलाई के काम मेरे जीवन में चल रहे हैं और तू अभी भी खुदावंद तूने पूरे नहीं किए। Lord, I hunger for you. और प्रभु, मेरे जीवन में तेरे लिए बहुत भूख और प्यास है। I repent of settling for less than all you have for me in any area of my life. और प्रभु, मैं उन चीज़ों के लिए तेरे आगे झुककर माफ़ी मांगता हूँ जिन चीज़ों में तेरे पिता परमेश्वर मैंने उन कमियों को पाया है, क्योंकि तूने बहुत आयत से मेरे लिए रखा है। प्रभु, Lord, now I position to receive the more that you have for me. और प्रभु, मैं अब तैयार हूँ मेरे परमेश्वर प्रभु जी, वो बड़े के लिए जो तूने मेरे जीवन के लिए रखा है। I ask you for new will to take further into your plan
on purpose to receive a fresh anointing. और प्रभु मैं आज उस नई सोच को प्रभु जी उस आस को तेरे आगे रखता हूँ ताकि जो तेरा नया प्लान है मेरे परमेश्वर प्रभु जी उससे खुदावन मैं प्रभु जी तेरे अनोइंटिंग को तेरे अनुग्रह को पा सकूँ प्रभु And I thank you for all you are about to do in Jesus' name. Amen. और प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि जो आप से करने वाले हैं परमेश्वर यीशु के नाम में आमीन And all the people said, सभी ने कहा God bless you all and thank you. आमीन थैंक यू जीसस थैंक यू लॉर्ड जीसस किन्या ने आमीन किया ने How many of you said amen? तो आमीन ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇसी ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਹੈ So what does amen means? So Amen Ramadan- means that this may Yes. be the will of God too. ਔਰ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਹੈ That we are all ready to do this. ਕਿੰਨੇ ਅੱਜ ਚਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਗੇ ਟਰੈਕ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ How many of you are go outside of the church and you will distribute the tracts? ਕਿੰਨੇ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ Or how many of you will take his good news with you? ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹੈ And if we will start from today and then it will start in our lives. ਸੋ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾ ਸਕੀਏ And so the pastor has prayed so that we can go in the world. ਦੂਸਰੀ ਉਹ ਦੁਆ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਰਗੇਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਹੈ And the second prayer he will do that your mortgage will be Amen. paid off. ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ And let us all give glory to the Lord. ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਪ੍ਰੇ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਔਰ ਪੀਆਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ And then he will pray the third prayer that you all may receive the PR and you be citizens. ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੀਏ ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੈ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ And because this is written in the Word of God, that let us first seek the kingdom of God and everything else shall be added on to you. ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਧਿਆਨ ਇਸ ਵਚਨ ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ And today, if we put our eyes onto this word, every need that we have in our life will be fulfilled. ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਓ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੌੜ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ So that I request you that when we leave from here, that we can start this journey, we can start this race that we had already started. ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੋਨਾ ਵਰਗੇ ਬਣੋ ਔਰ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਵਰਗੇ ਬਣੋ ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ And we do not want that you be like Jonah or you be like Isaiah. We want you to be what God had made you to be. ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਚਨ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ And today the word that we have received in our lives, it is a powerful word, and if we give